بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو ہے وہ دیکھیں آج کا جو لیسن ہے وہ ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ البتہ جب جملہ اسمیہ کا دوسرا جز ایسا لفظ نہ ہو جو کسی موصوف کی صفت واقع ہو سکے تو جائز ہے کہ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز بھی معرفہ ہو۔ اب اس کو تھوڑا سا ذرا صحیح سے تسلی کے ساتھ اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں جو لاسٹ لیسن ہم نے پڑھا تھا کل کا، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر پہلا والا لفظ معرفہ ہو، خاص ہو، دوسرا نکرہ ہو تو ہے کا ترجمہ آ جاتا ہے۔ جیسے زید حسن، زید اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے کیا پڑھا تھا، زید اچھا ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک اور مثال پڑھی تھی، الرجل صادق، مرد سچا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں کہ اس میں دونوں لفظ معرفہ آ جاتے ہیں۔ آج ہم یہ قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں، یاد رکھیے گا۔ جملہ اسمیہ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو پہلے والے لفظ کو مبتدا کہتے ہیں، جیسے آپ نے بہت اچھا بتایا انہوں نے عثمان نے کہ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا بولتے ہیں، دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر آپ غور کریں، اچھا کل تک کے لیسن میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے، نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں آج کی یہ جو مثال ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے انا یوسف، میں یوسف ہوں۔ اب اگر میں آپ سے سوال کروں، یہ جو انا ہے، انا، یہ انا جس کا معنی ہے میں، یہ پروناؤنس میں آ رہا ہے، یہ ضمیروں میں آ رہا ہے، کیا یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں، آپ میں سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ بتا سکتا ہے، بتا دیں تینوں میں سے۔ جی سر یہ معرفہ ہو جائے گا۔ انا معرفہ ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے۔ اس میں معرفہ کی جو مختلف ہم نے قسمیں پڑھی تھی، اس میں سے ایک قسم کیا پڑھی تھی ہم نے، اس میں ضمیر ہونا، اس میں ضمیر ہم نے پڑھا تھا۔ تو کیونکہ یہ اس میں ضمیر ہے، یہ معرفہ ہے، شاباش۔ اچھا اب یوسف کا جو ورڈ ہے جو کہ خبر بن رہا ہے، یہاں یہ ترجمہ بن رہا ہے میں یوسف ہوں، یہ ورڈ جو ہے یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ یہ بتائیں آپ۔ یہ بھی معرفہ ہے بھائی جو باقی آپ دونوں کو اگر آواز آ رہی ہے تو معرفہ ہی ہے نا یہ، یا کچھ اور ہے تو وہ بتا دیں پھر مجھے۔ جی سر معرفہ ہے، معرفہ ہے۔ اس کا مطلب یہاں پر دیکھیں جملہ اسمیہ کمپلیٹ سینٹنس بن رہا ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر دونوں جو پارٹ ہیں، اس کے دونوں جزء ہیں وہ معرفہ ہیں۔ انا یوسف ہوں، میں یوسف ہوں، اور ہوں کا بھی ترجمہ آ رہا ہے۔ اچھا انا کی جگہ اگر میں ہوا لگا دوں اور میں یوں کہہ دوں ہوا یوسف، تو اس کا بھی ترجمہ یہی ہوگا، ہے والا ہوا یوسف، وہ یوسف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر میں کہوں ہیا فاطمۃ، وہ فاطمہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہوا یوسف، وہ یوسف ہے، ہیا فاطمۃ، وہ فاطمہ ہے، تو یہاں پہ ہے کا ترجمہ ہوگا، حالانکہ دونوں معرفہ ہیں۔ تو دیکھیں ایک بات تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ دیکھیں انا یہ تو ضمیر ہے، یہ تو جو پہلا پارٹ ہے جملہ اسمیہ کا وہ تو معرفہ ہوتا ہی ہوتا ہے عام حالات میں اکثر اوقات، اور جو دوسرا والا لفظ ہے نا وہ جز بھی معرفہ آ سکتا ہے، جیسے کہ کسی کا نام، یہ آپ کے سامنے کہ دوسرا والا جو حصہ ہے یہ کسی کا نام ہے ذاتی۔ اگر کسی انسان کو اپنا نام بتانا ہے تو وہ اپنا نام ہی بولے گا نا، اس نام کو تو نکرہ ہم نہیں کر سکتے نا، کیونکہ وہ تو ویسے ہی خاص ہے۔ تو انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ جب جملہ اسمیہ کا دوسرا والا جز یعنی یہ یوسف ایسا لفظ نہ ہو جو کسی موصوف کی صفت واقع ہو سکے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یوسف کسی کی صفت بنے گا یا یوسف کی صفت آئے گی؟ یہ بتائیں۔ یوسف کی صفت آئے گی۔ یوسف کی صفت آئے گی نا، یوسف تو کسی کی صفت میں نہیں جائے گا نا، یوسف تو نام ہے۔ تو جملہ اسمیہ کا جو دوسرا جز ہے وہ کسی موصوف کی صفت نہیں بن رہا۔ انہوں نے یہی لکھا ہے کہ دوسرا جز ایسا لفظ نہ ہو جو کسی موصوف کی صفت بنے، مطلب یہ ہے کہ دوسرا والا لفظ جب صفت نہیں بن رہا، ٹھیک ہے نا، بلکہ اس کی صفت لگانی چاہیے، وہ ایسا لفظ ہو تو وہ معرفہ بھی آ سکتا ہے، جیسا کہ لفظ یوسف۔ یوسف ایسا لفظ ہے کہ اس کی صفت آ سکتی ہے، یہ خود کسی کی صفت نہیں بنے گا۔ تو جتنے بھی نام ہیں اگر وہ نام آگے لیے جا رہے ہوں جملہ اسمیہ میں تو وہ اس میں ہے کا بھی ترجمہ آئے گا اور دونوں معرفہ بھی آ سکتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو 3 مثالیں دے دی، انا یوسف، میں یوسف ہوں، ہوا یوسف، وہ یوسف ہے، ہیا فاطمۃ، وہ فاطمہ ہے۔ تو کیونکہ دوسرا والا لفظ صفت کا لفظ نہیں ہے، صفت کے لفظ کیا ہوتے تھے، جمیل، صالح، فاسق، طویل، صغیر، کبیر، ایسا لفظ نہیں ہے، تو پھر دوسرا جز معرفہ بھی آ سکتا ہے۔ یہی بات انہوں نے یہاں پہ کہی ہے۔ البتہ جب جملہ اسمیہ کا دوسرا جز ایسا لفظ نہ ہو جو کسی موصوف کی صفت واقع ہو سکے تو جائز ہے، یعنی درست ہے، جائز سے مراد ہے درست ہے۔ گرامر کی لینگویج میں جائز ہے، واجب ہے جو ہوتا ہے، مطلب جائز کا مطلب ہوتا ہے درست ہے، اور واجب لکھا ہوا ہوتا ہے اس کا مطلب کمپلسری ہے، ضروری ہے۔ تو یہ بات جائز ہے، یہ بات درست ہے کہ جملہ اسمیہ کا دوسرا والا لفظ بھی معرفہ ہو، جیسا کہ یہاں یوسف جملہ اسمیہ کا دوسرا لفظ ہے اور وہ معرفہ ہے، کیونکہ یہ موصوف تو بن سکتا ہے، یہ کسی کی صفت نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ ایک پوائنٹ یہ آ گیا کہ جب وہ لفظ
खुद मौसूफ बनने की सलाहियत रखता हो तो वो मार्फा आ सकता है। अच्छा, ये जो मैंने अभी तक पॉइंट बताया, इसमें कोई चीज किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं आगे बढ़ूँ। कोई मसला तो नहीं है इसमें? नहीं सर। समझ में आ गया, ठीक है ना? और बाकी स्टूडेंट जो हैं दोनों? जी समझ में आ गया। जी सर। देखें अब आगे, अब इसी का इस ये जो रूल बयान कर रहे हैं इसका एक और हिस्सा कह रहे हैं, या फिर मुब्तदा और खबर के दरमियान एक ज़मीर फासिल लाई जाए। ठीक है ना? क्या मतलब हो गया भाई इसका? कहना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई इंसान है और वो ये कहता है कि भाई मैं तो जो है ना अपना मुब्तदा और खबर दोनों को मार्फा लाना चाहता हूँ। देखें ये आपके सामने मिसाल है, ये मिसाल है अर्रजुलु हुवस सालिहु। इससे इंशाल्लाह ताला ये आपको रूल समझ में आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे करता हूं कि इस हुआ को काट देता हूं, ठीक है, हुआ या नहीं लिखा हुआ। अब मुझे आप में से कौन जवाब देगा कि ये जो अर्रजुलुस सालिहु है ये मुरक्कब तौसीफी है, ये अधूरा जुमला है, या ये मुकम्मल है, और इसमें है का तर्जुमा होगा कि नहीं होगा? सर ये मुरक्कब तौसीफी है। मुरक्कब तौसीफी यानी इसमें है का तर्जुमा आएगा या नहीं आएगा? नहीं सर। नहीं आएगा, क्योंकि मुरक्कब तौसीफी में है का तर्जुमा नहीं आता। इसमें दोनों जुज़ों पर अल है, और इसका तर्जुमा कोई करके बता दे। अगर सिर्फ अर्रजुलुस सालिहु लिखा हुआ है तो क्या तर्जुमा होगा? नेक मर्द। नेक मर्द, बस है का तर्जुमा हम नहीं बोलेंगे। तो इन्होंने एक और रूल हमें सिखा दिया कि अगर आपको मुरक्कब तौसीफी आपने बनाया, ठीक है, और उसके बीच में आपको है का तर्जुमा लाना है और उसको कंप्लीट सेंटेंस बनाना है, जुमला इस्मिया बनाना है, तो आप बीच में हुआ लगा दें। ये इस जमीर को लाने का मकसद है। मुरक्कब तौसीफी के बीच में हुआ लगा दें। इस हुआ को कहते हैं जमीर फासिल, फासला पैदा कर देने वाली जमीर, क्योंकि रजुल और सालेह इन दोनों लफ्जों के दरमियान इसने गैप पैदा कर दिया है, एक फासला पैदा कर दिया है। इसीलिए इस जमीर को ग्रामर की टर्म में कहते हैं जमीर फासिल, जुदाई पैदा कर देने वाली जमीर, फासला पैदा कर देने वाली जमीर। और इस जमीर का फायदा ये होता है कि जब कभी भी मुरक्कब तौसीफी के बीच में ये जमीर लगा दी जाती है, ठीक है, तो उससे है का तर्जुमा आ जाता है। तो अब यहां पर आप तर्जुमा कर सकते हैं अर्रजुलु हुवा सालिहु, मर्द नेक है। एक तो बुनियादी बात ये है। अच्छा, जमीर जो है ना ये चेंज भी होती है, मुजक्कर के लिए मुजक्कर होती है और मोन्नस के लिए मोन्नस होती है। अब अर्रजुल की जगह अगर हाँ, जैसे मोन्नस की जमीर ये ले लें, जैसे अगर मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं अल बिन्तु हिया सालिहतु, यहाँ पर ही आ जाएगी, लड़की के लिए, औरत के लिए, मोन्नस के लिए ही आ जाएगी। अल बिन्तु हिया सालिहतु, लड़की नेक है। अगर मैं ये हिया हटा दूंगा तो फिर है का तर्जुमा हट जाएगा, ठीक है, और तर्जुमा हो जाएगा नेक लड़की। तो ये जमीर चेंज भी होती है, जैसे वो लफ्ज होता है पीछे वाला उसके मुताबिक चेंज होती है, हुआ हिया। और ये जमीरें जो ना इस लेसन के एंड में ये जमीरें आ रही हैं, प्रोनाउंस आ रही हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा तो आपको आसानी हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कब कौन सी जमीर आती है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको दो बुनियादी बातें बता दी, मुसक्कर के लिए हुआ आती है एक के लिए, और मोन्नस के लिए ही आती है। अल बिन्तु हिया सालिहतु, तो इसका मतलब हो गया लड़की नेक है। और रजुलु हुवा सालिहु, मर्द नेक है, यह तर्जुमा आ जाएगा। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि इस हुआ को बीच में लगाने से जो है इसके अंदर एक किस्म का स्ट्रेस पैदा हो जाता है, एक किस्म की ताकीद पैदा हो जाती है, और इसका तर्जुमा जो है इस तरीके का हो जाता है कि मर्द ही नेक है। यानी है का तर्जुमा तो रहता है, साथ में ही का भी वर्ड बन जाता है, मर्द वो नेक है। एक जोर देकर जब जमा के बात करना चाह रहे हो ना तो उस वक्त इस ज़मीर को ऐड करके आगे कह दिया जाता है। और अगर हम सिंपल एक वर्ड रखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, और हम एक सिंपल सेंटेंस हम बनाना चाहते हैं और हम कहना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर देखें, हम अपने उर्दू में अगर हम बात करें, अगर हम जो बोलना चाहते हैं मर्द नेक है, नॉर्मल अंदाज में बोल रहा हूँ मर्द नेक है, तो मैं कहूंगा अर्रजुलु सालिहुन, मर्द नेक है। और मुझे जमा के जब बोलना है मर्द नेक है, ये आदमी ये नेक है, तो उस वक्त फिर मैं यूं कहूंगा अर्रजुलु हुवस सालिहु, मर्द ही नेक है। तो ये भी लिख लें कि ज़मीर फासिल ही का भी माना दे देती है। ये बहुत अहम चीज है, और कुरान करीम का जब हम मुताला करते हैं तो इस किस्म की मिसालें आपको दिखेंगी, ठीक है, कि जोर पैदा करने के लिए ज़मीर फासिल को ले आया जाता है। जैसे शुरू में ये पहले पारे में सूरह बकरा की इब्तिदाई आयतों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि अल्लाह पाक ने फरमाया उलाइका हुमुल मुफलिहून, क्या फरमाया? उलाइका हुमुल मुफलिहून, ठीक है ना। तो ये जो उलाइका आया है, उलाइका, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ हुमुल मुफलिहून। अब देखें, अगर ये हुम नहीं होता ना, उलाइका का मतलब होता है वो सब,
उलाइका इसमें इशारा है और ये जमा के लिए आता है, वो सब, यानी अल्लाह पाक ने शुरू में जिक्र किया कि जो अल्लाह पे ईमान लाते हैं, उसकी आखिरी किताबों पे ईमान लाते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, तकवा परहेज़गारी इख्तियार करते हैं, ठीक है ना, अल्लाह ने जितनी आसमानी सहीफे नाज़िल किए इससे पहले वाली किताबों पे भी ईमान लाते हैं, फुला 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 नेक काम करते हैं। उसके बाद एंड में फरमाया तो वो लोग कौन है जो ये सब नेक काम करते हैं, फरमाया उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तो अब तर्जुमा यहाँ बनेगा, उलाइका का माना है वो और मुफ्लिहून का माना है कामयाब, ठीक है ना। मैंने गलती से शायद यहाँ ये जीम लिख दिया, मुझे लग रहा है, मैं इसको हे बना देता हूँ, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तो जब अल्लाह पाक ने फरमाया उलाइका हुमुल मुफ्लिहून तो अब तर्जुमा बन गया वो ही कामयाब हैं, जो ये सारे पीछे नेक काम करेंगे वो ही लोग कामयाब हैं। ये हम ने इस ज़मीर फासिल ने तर्जुमा दिया है। अगर ये ज़मीर फासिल नहीं होती और जुमला यूं होता उलाइका मुफ्लिहून, नॉर्मल जुमला होता कि उलाइका इसमें इशारा है, मारफा है, और मुफ्लिहून नकिरा होता, तो फिर ही का तर्जुमा नहीं आता, फिर कलाम में वो जोर भी पैदा नहीं होता। तो देखिए कुरान करीम के इब्तिदा में ये आपके सामने मिसाल है हम की। अब हम क्यों आया, हम जमा के लिए आता है, क्योंकि उलाइका जमा के लिए, तो हम जमा के लिए आ गए। मैंने आपको बताया ना इस सेशन के एंड में ज़मीरें आएंगी तो उसको हम फिर मजीद उसको रात याद कर लेंगे तो आसान हो जाएगा आपको। तो उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यहाँ देखिए उलाइका इसमें इशारा है, ये भी मारफा है, हम ये भी मारफा है, और अल मुफ्लिहून ये भी मारफा है, क्योंकि इस पर अल आ रहा है मोरब बिल्लाह में, ठीक है ना। तो इस तरीके से ज़मीर फासिल आती है और कुरान करीम का जब मुताला करते हैं तो, और अरबी ज़बान का, कुरान हदीस अरबी ज़बान, तो उसमें ये कायदा और ये लग रहे होते हैं कवाइद, ये रूल अप्लाई किए जा रहे होते हैं और ये जा बजा आप चीज़ें देखेंगे। तो जिसने ग्रामर पढ़ी होगी, बारीकी समझी होगी तो समझ में आएगा। इन्होंने भी देखें जमा की मिसाल दी हुई है यहाँ पर, इन्होंने क्या मिसाल दी है बताइए, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है जमा की मिसाल में, ये देखें अर रिजालु हुमुस सालिहूना, मर्द वही नेक हैं, ये तर्जुमा एक बढ़ जाएगा और जोर पैदा हो जाएगा। तो क्योंकि रिजाल जमा है तो यहाँ पर हम भी जो है वो जमा के लिए आ गया, ठीक है ना। अर रिजालु हुमुस सालिहून, मर्द ही नेक हैं, ये एक जोर पैदा हो गया। अब इसका मतलब ये पता लगा कि जुमला इस्मिया का दूसरा जो जुज होता है वो मारिफा आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये बताएं पहले। हाँ भाई, इन मिसालों की रोशनी में आप बताएं दूसरा वाला जुज, ये जो दूसरा पार्ट है, ये मारिफा आ सकता है कि नहीं आ सकता? जी सर आ सकता है, आ सकता है ना। ये आप देख रहे हैं सब पे अल्लाह का, जी सर, और जी ये इसमें सर, अलम है, जी सर, सब ये मोरब बिल्लाह में, ये मोरब बिल्लाह में, लेकिन कब आया है? जब बीच में जमीर डाल दी, ये हुआ जब वाली, बीच में ज़मीर ठीक है फासिल, ना, ये जमीर फासिल डाल दी, या फिर वो नाम हो, तो किसी का खास नाम है तो वो तो मजबूरी है, अना यूसुफ में यूसुफ हूँ, हिया फातिमा, वो फातिमा है, तो उसमें भी इसी तरह होगा कि वो मारफा आ सकता है। अगर आप देखें यहाँ पे ये लिख रहे हैं, कह रहे हैं अगर यहाँ से ज़मीरें निकाल लें तो ये मुरक्कब तौसीफी हो जाएंगे, यानी अगर इस ज़मीर को हटा दें थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, अर्रजुलुस सालिहू, तो ये मुरक्कब तौसीफी, इसमें है का तर्जुमा नहीं। आगे ये आप लोग लिख लीजिएगा अपने अपने पास नोट में, मुरक्कब तौसीफी हो जाएंगे, यानी है का तर्जुमा हट जाएगा और ये नाकिस जो है मुरक्कब बन जाएंगे। नेक मर्द, बहुत से नेक मर्द, बस ये तर्जुमा रह जाएगा। तो ये आज का ये रूल था ग्रामर का जो मैंने आपको समझाया। देखें अब आगे ये यही बात कह रहे हैं, इसमें कोई ऐसी आगे इतनी मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद फिर हम अरबिक कन्वर्सेशन की तरफ जाएंगे। जी जी बोलें सर। जैसे ये आपने बताया अना यूसुफ, जी जी मैं सुन रहा हूँ, बोले सवाल करें। सर अगर आप कह रहे हैं अना यूसुफ, मैं यूसुफ हूँ, सर अगर मुझे बोलना हो मैं मर्द हूँ तो सर फिर अना रजुल होगा या अना रजुल? नहीं देखिए, अगर आपने नॉर्मल यू कहना है कि मैं मर्द हूं तो अना रजुलुन, अना मारफा रहेगा, रजुलुन ना रहेगा। अना रजुलुन, मैं मर्द हूं, एक मारफा रहेगा एक नकिरा रहेगा, ये तो है ही खास नाम ना। रजुल का जो वर्ड है वो तो नकिरा मारफा हो सकता है ना, तो हम यूं कहेंगे अना रजुल, मैं मर्द हूं। इसी तरह अना इम्राअह, मैं औरत हूं, फिर आप अल लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। अच्छा सवाल किया है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपने ये मैं मिसाल लिख लेता हूँ, ये देखें ये यूं बन जाएगा, अना रजुलुन होगा। इसी तरह अगर कोई खातून कहती है तो वो कहेंगी अना इम्राअतुन, अना इम्राअह, मैं औरत हूं, यूं कहेंगे। हाज़िही बिंतुन, हाज़िही बिंतुन भी सही है, ये लड़की है, शाबाश आपने सही बनाया। ये भी मैं लिख रहा हूँ, अब देखें आप लोग खुद मिसालें बना रहे हैं माशाल्लाह। हाज़िही बिंतुन, ये लड़की है, ये हो गई मिसाल। और बोलिए, ठीक है ना, ये मिसाल बन गई आपके सामने। हादिही बिंत, ये लड़की है, क्योंकि हादी इसमें इशारा मारफा है, बिंत क्या है ना, कह रहा है, तो है का तर्जुमा आ गया। अच्छा अब अगर ये कायदा समझ में आ गया है तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और एक तो ऐसी बातें जो अब कोई नई बात नहीं है तो वो उसको मैं थोड़ा सा पूरा करा के फिर अपने कन्वर्सेशन की तरफ हम जाएंगे। कोई सवाल है तो मजीद पूछ लें आप लोग, किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई बात समझ में नहीं है, मजीद पूछ सकते हैं।
सर एक और सवाल है, वैसे तो इसका हुआ का मतलब तो वो होता है ना, वो देखें नॉर्मल में वो होता है, लेकिन इस खास एक कॉन्टेक्स्ट में, इस सूरत में, इस केस में कि जब दोनों मारफा है और बीच में हुआ आ रहा है, जैसे अर्रजुलु अस्सालिहु बीच में हुआ लगा दिया तो अब ये है का तर्जुमा भी दे देगा, मसला नहीं। वैसे तो हुआ का माना वो होता है, आपकी बात बिल्कुल आपने सही बोली है, पता इस तरह चलेगा ना। देखे ना अभी मैंने आपको बताया ना, खास कॉन्टेक्स्ट में इस पर भी अल है, इस पे भी अल है और बीच में अब हुआ आ रहा है, तो अब ये हुआ है का देगा, इस केस में देगा ना। और अगर अल नहीं हो, अगर अल नहीं हो फिर कहाँ पे अल नहीं हो बोल के बताएं, इस मिसाल में बताएं कहाँ पे अल नहीं हो, मिसाल के तौर पर रजुलु हुवा सालिहु हो, फिर यानी इस रजुल पर अल नहीं हो, यूं हो, अल नहीं हो, हाँ यूं हो। तो देखें अगर बिलफर्ज आप ये चले, हम मान लेते हैं कि ये यू लफ्ज है रजुलुन हुवा सालिहु, यूं हो, ठीक है ना। ये बात ज़हन में रखें, अरबी ग्रामर के तकादे में आपको मैंने पढ़ाया है कि आम हालात में जो पहला वाला वर्ड होता है, मुब्तदा होता है, वो क्या होता है, हमेशा मारिफा होता है। तो आपको अल लगा के ही बोलना है अरबी में, जब आप यूं करके कहना चाह रही हैं और रजुल हुवा सालिह, ये तो हम पहले ही इत्तेफाक करके आ चुके हैं लास्ट लेसन में कि आम हालात में अक्सर औकात, बाद ऐसे भी हालात हैं जहां मुब्तदा पे अल नहीं आता, ये मुब्तदा है और मुब्तदा तो मारफा होता है, तो उसको तो अल लगा के ही बोलना है हमें। अब और अगर कोई मिसाल है तो वो बताएं अब आप, ये तो मैंने आपको जवाब दे दिया। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अगर और कोई जहन में तो बताएं। अगर आप ये कहती है ना मुझे, चले मैं आपको एक सवाल बना देता हूँ उससे रिलेटेड, सही है, यहां से हम अल हटा देते हैं, कैसा हो सकता है? देखिए यहां पर तो अल नहीं हट रहा, ये तो मैंने बता दिया, ये तो अर्रजुलु करके ही बोलना पड़ेगा, अर्रजुलु हुवा सालिह। थोड़ी देर के लिए मैं इस अल को काट रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैंने ये दूसरी पेज भी चले लगा दी, ये बन गई दूसरी पेश, मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है ना यहाँ पर, और मैं कहता हूँ अर्रजुलु हुवा सालिहुन। ये हो सकता है क्योंकि मुब्तदा का जो दूसरा वाला जुज होता है ये तो नॉर्मली होता ही नकिरा है, यहां से अल हट जाए ये हो सकता है, फिर भी है का तर्जुमा ही देगा ये, अर्रजुलु हुवा सालिहुन यूं हो जाएगा तो भी मसला नहीं, लेकिन रजुलुन हुवा सालिहु यूं नहीं बनाया, ठीक है, अभी इब्तिदाई तौर पर ये मैं लिख भी रहा हूं, चलें ताकि और क्लियर हो जाए बात, अर्रजुलु हुवा और यूं लिखा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अच्छा देखें, हम यही बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, ये कि जुमला इस्मिया का दूसरा जुज जो मारफा होता है वो कब होता है, इससे रिलेटेड हम बात कर रहे थे। तो मैंने ये कहा था अभी आप लोगों को कि अगर बिलफर्ज हम ये मिसाल मान लेते हैं कि अर्रजुलु हुआ और फिर आगे लिखा हुआ सालिहुन, ठीक है ना, तो ये भी हो सकता है, अर्रजुलु हुआ सालिहुन हो सकता है अरबी में, ये बात ज़हन में रखिएगा। इस तरह ये मिसाल बन सकती है कि दूसरे वाले पर अल ना हो, क्योंकि दूसरे वाले पर अल नहीं होना ये एक नॉर्मल बात है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, आपको समझ में आ गया जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, हम जिसके बारे में बहस कर रहे थे। तो अर्रजुलु हुवा सालिहुन लिखा हुआ होगा तो भी हम बोलेंगे मर्द नेक है, लेकिन जितना ज्यादा स्ट्रेस इस सूरत में होगा ना कि अर्रजुलु पे अल है और अस सालिहु पे भी अल है और फिर बीच में हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो पावर होगी ना जुमले के अंदर एक जमा के बोलने वाली, वो इस सूरत में होगी। फिर जब आप यूं बोलते हैं अर्रजुलु हुवा सालिहुन तो थोड़ा सा कम स्ट्रेस हो जाएगा, और अगर आपने बिल्कुल नॉर्मल कर दिया, हुआ हटा दिया और हमने कहा अर्रजुलु सालिहुन, तो स्ट्रेस और कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके ध्यान में तो बताएं, मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं कि भाई कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई मसला है तो आप बता दें, या सही में आ गई बात, कोई सवाल है जो आज का रूल पढ़ा, अगर ये रूल भी सही में आ गया तो बहुत बड़ी चीज आपको सही में आ गई समझ लें अरबी की। कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, वरना फिर हम कन्वर्सेशन पे चलें। ठीक है सर, ठीक है ना, चलें। अब मैं इसको बस ये यहीं पर ही फिर मैं इसको रोक रहा हूँ, ठीक है, इस रिकॉर्डिंग को।